India Data Portal is one-stop point for open data, wherein you can access the data, clean data which is accessible at one place. You can create your visualizations also there. It's all automated from the government sources. The data has been made available, and various categories have been made here, which you can easily use and easily decipher. And it's basically a digital diary, a handy digital diary of data. You can get enormous government data here, and we keep updating the entire data. First and the foremost thing, we are not supporting the national media. We are supporting journalist community and the budding journalists. We have nothing to do with any media house. We are independent. We are associated with Indian School of Business, and our aim is to promote database journalism amongst journalists. And we have created a handy data diary. It's a digital diary which will help reporters to use data to support their stories and talk about fact-based news, evidence-based news. इस डेटा पे जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे अपलोडेड है, लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है, जो कि किसी जर्नलिस्ट को भी अवेलेबल होगा जब वो मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करेंगे. ये वो पूरा अपडेटेड डेटा है. वॉट एवर इज प्रेजेंट इन द डेटा पोर्टल राइट नाउ इज लेटेस्ट एंड अपडेटेड. इसके बियॉन्ड एज एंड व्हेन जब भी गवर्नमेंट अपडेट करती है अपने पोर्टल पे डेटा, साइमल्टेनियसली हम लोग भी, हमारे डेटा साइंटिस्ट की पूरी टीम है, इट्स एन आर्मी ऑफ डेटा साइंटिस्ट जो कि अपलोड करने में लगे हुए हैं अपडेट करके. सो यू गेट द लेटेस्ट डेटा. जिसका डेटा सरकार के पास भी अवेलेबल नहीं है, सरकार ने ही अवेलेबल नहीं किया है नहीं, मैं नहीं कह सकती, लेकिन अगर कोई डेटा सरकार ने ही अवेलेबल नहीं कर रखा है तो हम नहीं अवेलेबल कर पाएंगे. ये हमारा कह लीजिए, या ये हमारा आउटलुक कह लीजिए, सो दैट इट्स इजी फॉर जर्नलिस्ट एंड रिसर्चर्स टू यूज डेटा. प्लीज बी क्लियर, वी आर नॉट क्रिएटिंग डेटा. नमस्कार. जैसे आज की कार्यशाला में हम आपके पास पहुंचने के लिए ये कोशिश किए हैं. हमारे पास 11 सेक्टर है, 11 डोमेन है डेटा सेट्स के. इट स्टार्ट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर, फिनेंशियल इंक्लूजन, रूरल डेवलपमेंट, बजट, इलेक्शंस, हेल्थ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS का जो डेटा है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डेटा सेट है, स्पेशली गिवन दैट वी हैव सीन जो हमारे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में द डेमोग्राफी ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक मैप जो हमने देखे हैं, विमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड, मैटरनिटी केयर रिलेटेड, ये जो डेटा सेट्स हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है फ्रॉम द पॉलिसी मेकिंग पार्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू. We have data on socio-economic sector, be that census, demography, be that census, PCA, household amenities, और जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किए हैं आप सबके साथ, वो है मिशन अंत्योदय के डेटा सेट्स. मिशन अंत्योदय एक ऐसा, मैं इसको एक डेटा सेट सिर्फ नहीं कहना चाहूँगी, ये एक ऐसा अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क है, एक सर्वे है. करीबन 26 ministries has come together to build this survey so that they can work and better rural lives and livelihoods. Be that related to electricity, availability of electricity, drinking water, primary health care facilities, community health CHCs or PHCs, be that primary schools availability, middle school or colleges, degree colleges availability. All these information you will get in Mission Antyodaya dataset. Coming out from there, you can, in the agricultural sector, you will be able to see the mandi level information. So all of us know the farmers produce the crops, but where do they sell? So we have coverage for 3,000 market centers in entire India, and you will be able to see the market prices in those centers. What are the trading prices over there? In government schemes, you will be able to see all the government schemes that are being availed by the government, say by several ministries, starting from PM Kisan and other data sets. We have talked about election. There has been a huge demand for election data from the journalists like you, and on demand we have brought the election data to you. We are hopeful that it will be extremely useful for all of you. And then if I want to talk about the HFI section, more recent data, high frequency data. So HFI section has been built to track the economic recovery process during the COVID scenario. So how did India do when the COVID has been hammering on all of our head?
So how did India quickly recovered? All the V-shaped economic recovery that has been talked about in the leading newspapers. So we are able to see that whether company registration has dipped when the lockdown was announced, how the gold prices has moved up when the 3 months lockdown has announced, how it has doubled, more than doubled before the COVID, and after the COVID it is still yet to reach the price level where it was 3 years back. Madam, what do you suggest? I mean, I can start and then you can step in. फ्यूचर में जैसे हमारा ये पोर्टल आप लोगों के लिए बनाया गया है, आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पिलर है, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि इंडियन जो बडिंग जर्नलिस्ट है, हम चाहते हैं कि वो डेटा बेस्ड स्टोरीज बनाएं, हम चाहते हैं कि आप लोग एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग में देश को और आगे लेके जाएं। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप जो है कनेक्टिंग पॉइंट है पॉलिसी मेकर्स और जनरल पॉपुलेशन के, जो हमारे जैसे आम आदमी हैं, उनसे आप जो है कनेक्टिंग ब्रिज है। आप जैसे लिखेंगे, आपके जो पीसेस लिखते हैं जर्नलिस्ट में, पेपर में, आप पॉलिसी मेकर का अटेंशन तभी ड्रॉ कर पाएंगे जैसे आप डेटा के साथ बात करेंगे, एनेक्डोटल स्टोरीज से जैसे आप डेटा बेस्ड स्टोरीज बनाएंगे। तो यही हमारी आशा है और ख्वाहिश है कि हमारे जो यंग बडिंग जर्नलिस्ट और पॉपुलेशन है वो और डेटा बेस्ड स्टोरी यूज़ करे और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग में इंडिया को आगे लेके जाए। प्लेस द बडिंग जर्नलिस्ट ऑल्सो, जो इंस्टीट्यूशंस हैं आपके मास कम्युनिकेशन के, वहाँ हम जर्नलिस्ट को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो स्टार्टिंग से ही डेटा बेस्ड स्टोरीज करें। वन दे अंडरस्टैंड, इसीलिए हम आप लोगों के पास भी आ रहे हैं कि अगर आप लोग समझेंगे कि इजीली अवेलेबल है कोई चीज़, आपको 10 जगह जाना नहीं पड़ेगा, दौड़ना नहीं पड़ेगा कि भाई किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिनिस्टर को फ़ोन कर रहे हैं, मिनिस्ट्री में फ़ोन कर रहे हैं कि भाई ये डेटा हमको दे दीजिए, एंड देन यू गेट द डेटा डाउनलोड करके, वो चीज़ ना हो, इसलिए ये पोर्टल बनाया गया है कि आप लोग ईजिली अवेलेबल कर सके, आपको करा है, आप आराम से यूज़ कर सकें। हम इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं, जर्नलिस्ट को ट्रेन कर रहे हैं जो कि मीडिया स्कूल्स में हैं, सो दैट दे बिकम ईजिली फ्रेंडली विद द डेटा, और उनको इस तरीके से सोचना ही ना पड़े, वो उनके इनबिल्ट नेचर में आ जाएगा कि हम कोई स्टोरी कर रहे हैं तो हमको डेटा सपोर्ट मिल जाए। थैंक यू।